Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 8, today we're going to talk about acids. Although there is uh, no separate topic about acids in the chapter metals and non-metals, but while we were discussing the reaction of metals with acids, this term came there. So I thought it better to to tell you something about these acids. We will not go into details. And I'm sure that in your previous class, in class 7th, you might have that rough idea about the acids. Today, so we will talk about acids only. Although we need to also know about bases and salts, but we will try to confine ourselves to acids only. Now, acids generally, when we say, जब हम acids की बात आम इस्तेलाह में करते हैं, हम कहते हैं वो चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा होता है, यानी तम चीज़ जिन जन सिक छ आसान टेस्टस में तमन छ वनान एसिड, तमन छ वनान एसिड. तो या अगर सी एसिड त्रा टेस्ट करो ब्या टेस्ट लिटमस पेपर त्रो यह ब्लू लिटमस यह तब्दील रेडस मन यह तब्दील रेडस मन वो सवाल ग पौर अगर अस कर टेस्ट कि कह चीज एसिड कि कह चीज एसिड कहें अस वो गए कि एसिड्स आर सॉर एंड टेस्ट ये खट्टे होते हैं मगर यह डेंजरस चीज we may not keep trying everything that comes to our way. Past का चीज करो टेस्ट where मतलब using our taste, using our tongue, it can be dangerous. So the best possible way is to use this litmus paper test. Litmus paper test is the safest test. ठीक है ऐसे पता है लिटमस ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड मस गो अगर ब्लू लिटमस पेपर गो चेंज इनटू रेड सो चीज एसिड अगर एसिड कुन बीकरस में फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीकर हियर and you put this litmus paper into this beaker. If this blue litmus paper turns red, so we can say it is an acid. This test that you're gonna use your tongue, it's not safe, it is unsafe, it is dangerous. Because अगर कहीं acid तम ते आसा यम जन इंतहाई खतरनाक इंतहाई dangerous छ अस हेकान न सोचते कि अस हेको यम जबरदस्त टेस्ट कर कोई टेस्ट यह हालांकि they are generally sour in taste, but this is not desirable. You should a safe method. You should a safest way acid मतलब वुशनस की कहाँ चीज है acid की कहाँ चीज है acid की ठीक. Go we can define acids are those substances that are sour in taste and they change the color of blue litmus paper to red. Acids are those substances which have a sour taste and they change color of blue litmus paper to red, right? तम चीज सिक ब्लू लिटमस कर चेंज कत रेडस मज तम वन एसिड्स जनरली एसिड्स कत मज कंपाउंडन मज ये मटर कर क्लासिफाई मटर कर क्लासिफाई दोन मज गए गई प्योर सबस्टेंसेस बे गई इम्प्योर सबस्टेंसेस वी कैन क्लासिफाई मेटल इनटू टू मेन कैटेगरीज गई प्योर सबस्टेंसेस बे गई इम्प्योर सबस्टेंसेस पत करो प्योर सबस्टेंसेस फर्दर क्लासिफाई वी क्लासिफाई pure substances further into elements and compounds और फिर हम कंपाउंड्स को फिर क्लास पे करते हैं हम लिखते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स अब ये एसिड कहाँ पे आता है इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स एसिड से कमन मज कंपाउंडन मज ठीक ये इन एलिमेंटन मज के ये इन सॉल्टन मज के ये इन बेसन मज ये कमन मज ये एसिड सॉरी एसिडी कथ मज एसिड acidic compound acidic go acidic pure substance acidic because when we classify matter we have two main categories pure substances and impure substances we classify pure substances into two categories elements and compounds then we break up these compounds into three categories acids bases and salts so we can say acids fall in the category of compounds then you have impure substances where you have mixtures homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. But remember, acid comes in the category of compounds, right? So you have now, since you have this acid falls in the group of compounds. These compounds, I mean to say, these acids, they are there are two sources of these. This source again natural source. Big मतलब
यम जानदार चीज़ों पे नॉट नेचुरल सोर्स मतलब गए यानी ऑर्गेनिक हम एसिड्स को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एसिड करो चल डिवाइड कौन मज दोन ग्रुपन मज आ गए ऑर्गेनिक एसिड्स बे गए इनऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स क्या गए यम जानदार चीज़ों पे मिलान मसलन मिसाल बताऊँ तुम यम जन मेव खान संगतर खान अंबुर खान दच खान या लिमन खान चीज़ ये कहाँ से आते हैं प्लांट्स क्या है लिविंग हम इनको कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स या यूरिक एसिड पेशाबस में दैट्स एन ऑर्गेनिक एसिड या प्रोटीन में क्या होता है अमाइनो एसिड वो भी हमारी बॉडी में लिविंग बॉडी में होता है तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो हमें जानदार चीज़ों से हासिल होते हैं ठीक इसके बाद इनऑर्गेनिक इनको हम इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स यानी वो एसिड्स जो मिनरल से तैयार होते हैं जो मैदनियात से तैयार होते हैं जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इनको हम क्या बोलें इनको हम क्या बोलते हैं या इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड तो एसिड्स को हम डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो हमें लिविंग चीज़ों से मिलते हैं जैसे हमारे हम बोलते हैं नेचुरल एसिड जैसे हमारे पास जो फ्रूट्स हैं एप्पल वगैरह वगैरह ये हमें कहाँ मिलते हैं ये हमें मिलते हैं लिविंग सोर्सेज से यानी प्लांट से भी या एनिमल से भी हम कुछ हमारे जब हम ये खाते हैं कोई गोश्त होता है गोश्त में होते हैं प्रोटीन में क्या होता है अमाइनो एसिड्स ठीक तो हम कहेंगे we are actually eating the acid because it contains proteins contain amino acids so we can say this amino acid it comes all the way from your sheep it comes from the goat so we can say the source of this acid organic acid is sheep or goat and next time when you are eating an apple you are actually eating malic acid it is present in the fruit apple comes from the apple tree is a plant it's a living thing so these are organic acids inorganic acid and sulfuric acid inorganic acids are mineral acids are those acids which are actually synthesized in labs तुम एसिड जो लैब्स में तैयार किए जाते हैं ठीक बहुत सारे होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इनको हम लेबस में तैयार करते हैं लेकिन नेचुरल एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं ठीक अब इसके बाद एक और चीज़ है जैसे हम कहते हैं अक्सर कि एसिड स्ट्रांग एड गए वीक some acids are strong some are weak strong acids कम गए तो weak acids कम गए strong acids गए तम acids यम जन usually आसान तमाम यम जन mineral acid आसान चाहे H2SO4 अच्छा nitric acid HCl strong acid क्या because they are corrosive मतलब कोई यह चीज़ में वो उस चीज़ को खा जाते हैं जैसे आपने तेजाब तक तुलो तेजाब H2SO4 तह तुलो यह त्रो कुन पलवस पे या तह थो कुन बोतल मज शिशु बोतल वर तथ बोतल खेवान वी कॉल इट corrosive गो यम जन इनऑर्गेनिक यम जन स्ट्रांग एसिड्स दे आर corrosive and they are dangerous तवे हेको त्रे जे पे तेजाब कह तिज इट विल डैमेज आवर टंग आज अल्लाह ताला बचन वारियान एसिड अटैक what do they do they actually तुम त्रावान सुई तेजाब ठेकान कंस बुथिस उससे उसका चेहरा जल जाता है why because it is a strong acid and it is highly corrosive and so it is highly dangerous ठीक so what are strong acids are those acids which are highly corrosive and which are highly dangerous for example sulfuric acid for example nitric acid for example hydrochloric acid इतने पर बात weak acids कहते हैं कि डेंजर आसान के weak acids कहते हैं acids जिनमें डेंजर आसान के usually हम इसका weak acids को usually organic acids मसलन मतलब यूरिक एसिड जो हमारे पेशाब में होता है इट इज़ नॉट डेंजरस अच्छा इतने पर ऑक्जेलिक एसिड जो किस में होता है एप्पल में होता है साइट्रिक एसिड जो हमारे लेमन में होता है ठीक इसी तरह और भी एसिड जैसे हमारे विनेगर इट इज़ आल्सो दिस व्हाट वी कॉल एज वीक एसिड हम हेकान डेंजरस कह सरफेस खेवान कि जिस बर्तन में रखोगे उसको ये नहीं खाएंगे ठीक कुछ सवाल के साथ पौध अक्सर अगर आप लेब में गए होंगे तो आपने देखा कि एसिड्स को एक खास किस्म के मतलब खास बानस मज थावान प्लास्टिक बानस मज कह लकड़ हंदिस बानस मज कह शिस्तरस बानस मज कह मिसिन बानस मज कह बल्कि आप लेब देखो
सारी चीज़ें किसके बने होते हैं? शीशे की, गिलास की। क्यों गिलास ही इस्तेमाल होता है एसिड को रखने के लिए? इसलिए होता है क्योंकि जो गिलास होता है इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ये मतलब इस गिलास में कोरोजन नहीं होता है। हम बाकी चीज दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बट गिलास इज resistant to corrosion. That's why we use glass containers for keeping acids in our labs. तब गिलास कर इस्तेमाल। दोम चीज ब्या चीज इंपॉर्टेंट समझन खर सह मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल तेजाब गरस मज ठीक तुलन तेजाब बे आब कर। हाँ एक और बात मैं भूल गया। अब एसिड्स को हम फिर भी हम दो टाइप लिखते हैं। हम लिखते हैं कि डाइल्यूट, हम लिखते हैं कंसनट्रेटेड। गो कंसनट्रेटेड एसिड बे गो डाइल्यूट कंसनट्रेटेड मज। कंसनट्रेटेड एसिड गो ये मज कम या कहीं आब प्योर एसिड ये मज आब कहीं। डाइल्यूटेड गो ये मज आब ज्यादा एसिड कम। त्रावान गर पन बैटरियन मज पे तेजाब पे आब रलावन ठीक। तुम ये कुन त्रावान आब मज तथ बनो डाइल्यूटेड ठीक। अगर कह खलिस एसिड सह गो कंसनट्रेटेड। गो व्हाट इज कंसनट्रेटेड? कंसनट्रेटेड एसिड गो सह एसिड ये मज सिर्फ एसिड आब कह। डाइल्यूटेड गो सह एसिड ये ज्यादा आब एसिड कम ठीक। मगर दुशवाई अगर मतलब कुन एसिड रलो आब पे दपो ना वह पर्वा कह ना यह डेंजरस। इट इज स्टिल डेंजरस। इफ इट इज डाइल्यूट इट इज डेंजरस। इफ इट इज कंसनट्रेटेड इट इज स्टिल डेंजरस। ओके वह ब्या चीज अगर वह कर एसिड आब कर एसिड डाइल्यूट यानी रलावन आब आब रलाव एसिड। अगर हमारे पास तेजाब बोतल तेजाब बोतल मज रलावन आब तिक तेजाब बोतल कंसनट्रेटेड अत मज आब कहीं बिल्कुल खालिस एसिड। हम चाहते हैं हम इसको डाइल्यूट करें, हमें इसके साथ पानी मिलाना है। क्या हम पानी मिलाएं या एसिड को भी? त्रो अत मज आब कि त्रो आबस मज एसिड त्रो आब कि एसिडस मज त्रो आब ठीक। सवाल वो बे अक मोन मतलब तेजाब बोतल अत त्रावन आब यानी कर तेजाब डाइल्यूट। त्रो तेजाब आबस मज कि आब त्रो तेजाबस मज। अक्सर मतलब दिमाग मज ये तुलो यह तेजाब बोतल पे त्रो आब ना यह ठीक यह डेंजरस। बेहतर गो करो त्रो तेजाब त्रो कत मज त्रो तेजाब आबस मज तिक यह कर बेसिकली जब हम ये करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ना इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस दौरान काफी हीट जनरेट होती है। अगर त्रो ना पे आब हीट आब आब खुदा थमुत हिसाब आब कर हीट एब्जॉर्ब। जब आब एसिड के अंदर एसिड ठीक। अगर हम डालेंगे ना ये ठीक, अगर हम ये करेंगे कि ये एसिड में पानी डालेंगे तो ये ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर पानी है हम पानी में डालेंगे एसिड तो जो वहां पर रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर काफी हीट प्रोड्यूस होती है तो वो पानी जो है वो इस रिएक्शन को हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेहतर क्या है? बेहतर यही है कि हम एसिड को ही पानी में डालें, न कि पानी को एसिड में डालें। ये बहुत जरूरी है, ये आपने बहुत जरूरी याद रखना है। तमें मतलब ऐड क्या? वी शुड ऐड acid to water, not water to acid, because we know during this when we mix up these acid and water, exothermic reaction happens where a lot of heat is produced. So what is the best way to avoid any danger situation is that we should add acid to the water, because water is a good heat absorbent. It can also put heat absorb, so it prevents the possible catastrophe that might occur if you are not vigilant and if you are not careful. तो ये गो ये दोम चीज पत यम जन एसिड acids they react with metals. I told you एसिड कर रिएक्ट ब्या चीज एसिड क्या एसिड मुझे बिजली करंट पास। हाँ एसिड में अगर आप बिजली पास करोगे तो ये बिजली को करंट इसमें पास होता है। इस कंडक्ट करा क्या? इलेक्ट्रिसिटी ठीक। तवे वन एसिड सोल्यूशन चाहे H2SO जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स। वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक।
तो बेच ब्याक चीज इन एसिड आसान दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म लास्ट में उसमें क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस पढ़ा है तो मैंने आपको बताऊँ उसमें लास्ट में क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस जैसे हमारे पास है जिंक सल्फेट अगर आप जिंक को अगर इसमें जिंक यानी जिंक ना मेटल बेन H2SO4 it will form zinc sulfate ZnSO4 plus H2 why zinc sulfate because zinc is a which is zinc M को replace kus asnya zinc benia H2SO4 M को hydrogen M को kick out hydrogen it kicked out hydrogen from here M को hydrogen is kicked why because zinc is more reactive than hydrogen so it formed zinc sulfate it formed zinc sulfate plus hydrogen gas वो ब्याक चीज तुर फिक्र ये ज्यादा रिएक्शन एसिडन तो मेटलन दरमियान अ लास्ट पे हाइड्रोजन गैस नेवर तो ये मैंने आपको एसिड्स के बारे में कुछ खास खास बातें बताई इसके अलावा जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं जैसे हम अगर जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें कोई नहीं कोई एसिड जरूरी ऑरेंज नमो लेमन नमो यानी लींब या संतन इनमें एक एसिड उसको हम क्या बोलते हैं दे कंटेन साइट्रिक एसिड CITRIC ये खेवा लींब या खेवा संतर इनमें काफ़ी सारी मात्रा में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है साइट्रिक एसिड की खासियत क्या है इट्स ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इसमें काफ़ी विटामिन सी इसलिए खाना चाहिए ठीक एप्पल इसमें होता है मैलिक एसिड इसी तरह होता है जो आंट हमें काटती है या जो हमें बी काटती है असलाई मास्टर टॉप या असलाई री टॉप इनकी डंक में फार्मिक एसिड होता है FORMIC जब वो फार्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर टिश्यू में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं टिश्यू में पता रेडनेस स्वेलिंग इट्स because the sitting of this ant or bee it contains formic acid ठीक इसी तरह जो हम ये मिल्क अगर हम खाते हैं कर्ड इसको हम बोलते हैं उसमें होता है मैलिक एसिड तब से दोस्तों त्रावन से पेट जरूर एक्चुअली वी एड मैलिक एसिड क्या है इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड ठीक इसी तरह जो हमारे पास ग्रेप्स है दे कंटेन टार्टरिक एसिड ठीक तो काफ़ी सारी जो रोज़मर्रा चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं उनमें काफ़ी एसिड्स मौजूद होते हैं और वो हम फिर जब हम वो खाते हैं हमारे पास वो एसिड्स पहुँचते हैं ठीक या टमाटोज में होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड ठीक तो खाने की चीज़ों में काफ़ी सारी एसिड्स और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स असल में तो अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं तो इसीलिए मैं आज समझा बेहतर आपको एसिड्स के बारे में बात करना थैंक यू वेरी मच